Assalamu alaikum. In today's video we will learn how to use a combo box and a list box in Visual Basic 6. Both are available in your tools. uh, these controls are available. It's the list box and the combo box. Both provide a list if we run a program. Combo box will provide a list. When we click on this button in combo box, a drop down list will shown. Okay, and in list box is a simple layout. The list will be shown simple way. If a list is long than its boundary, you will see a scroll bar over here. Okay, draw them through these tools, these controls, and I made a command button, two command buttons. Okay, now we are going to now we are going to the coding screen. Double click on form. Here's the form. When the form load, what it do, when we start our program, the first thing is that the form loads. Okay, so when form loads, what will happen? List 1 is the name of list box and combo 1 is the name of combo box. This command will add this item in list 1 and this item too. Okay, and this will add these two items in the combo 1. Okay, in the this is the combo box, name of combo box. Okay, through these lines we are adding items in combo box, and through this coding we are adding items in list box. Okay, these are the two buttons. Command 1, I use command 1 for combo box and command 2 for list box. In command 1, what I am doing, if the tags, it means the selected item is this, the first one which we add here. If it is this, then what it do, text 1 is the text box over here. This is the text 1, this is the list box, and this is the text 1. This is a simple text box. Its name is text 1. It will change the text property of text 1 to this. C1 is mean combo 1. Okay, this mean the first item of combo is selected. So yeah, if we select the first item from combo 1, yeah, it's mean combo box, then and click on command button, it will change the text property of text 1 to C1. It's mean combo 1. Okay, and if we select second item of combo box, it will change the text property of text 1 to C2. It's mean the combo the second option of combo 1. It's mean the second item of combo box. Okay, on command 2 is our second button over here. What we are doing, basically 0 is the first index of list 1. Okay, first item of list 1. If the first item of list 1 is selected, then what will do, it will change the text property of text 1 to L1. It is L, this is L. Okay, it's mean the list 1 and list 2. If we select the second item is 1, first item is 0, second item is 1. If we select the second item of list 1, the list box, then it will change the text property of text 1 to L2. Okay, this is a simple use of both boxes. Now we are going to play our program, start our program. See, these two items and these two items, because of when form load, it adds these two items in list box and these two items in combo box. If I change them, for example
स्टॉप कर दूं A, and I've changed the combo, so I'm changing here. Okay, now there's a difference. The code, it's add this item in combo box, and these are the items of list box here. Okay, when I select 1A in list and clicking the command button, C1, okay, C2, L1, L2, C2, L2, C2, L2, C2, L2. This is a simple use of combo box and list box. Now what is the main difference? This is the question which must be raised in your mind. So the main difference is when you select the list box, it have a option where it is multi-select. Okay, here's the option multi-select. You can select the simple and extended. It's mean you have two choices, three choices you have. In a list box we can select more than one atom in one time, but in combo box we can choose only one atom. So this is the main difference, and I will explain this difference practically in my second video. Thanks for watching this video. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स आपको यहाँ पर आपके टूल्स में अवेलेबल हैं। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल ये रहा और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ये रहा। ठीक है, मैंने कॉम्बो बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लिया और लिस्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये दो कमांड बटन यूज़ किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कोडिंग स्क्रीन पे जा रहा हूँ। डबल क्लिक करें अपने फॉर्म पर। ठीक है, फॉर्म पे डबल क्लिक किया है, कोडिंग खुल गई। जब हम डबल क्लिक करेंगे फॉर्म पे तो फॉर्म लोड और प्राइवेट सब, फॉर्म लोड और एंड सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको अब हम कोडिंग कर रहे हैं कि जब फॉर्म लोड हो तो क्या करें। लिस्ट 1 नाम है लिस्ट बॉक्स का, जो हमारे ये बना हुआ है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, और कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो 1। ठीक है, तो आप देखें कि list1.add आइटम, यानी लिस्ट 1 की जो हमारी लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर हम आइटम को ऐड कर रहे हैं, उस आइटम का नाम ये होगा। सही है, दूसरा आइटम ऐड करना है। जिस तरह आपको जितने आइटम ऐड करने हो इसी कमांड के थ्रू करते जाएंगे। आपको 10 आइटम ऐड करने तो करते जाएं। यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिखें जो आप आइटम का नाम रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिख दिया है। ठीक है, इस तरह कॉम्बो बॉक्स में हमें जो आइटम ऐड करने हैं वो इस तरह करते जाएंगे। इसमें भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। तो इस तरह 2 आइटम मैंने लिस्ट बॉक्स में और 2 आइटम कॉम्बो बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। जब फॉर्म लोड होगा ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ऐड करने का एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, जैसे लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिस्ट है, लिस्ट इसमें जाएं और यहाँ लिखते जाएं। जो कुछ भी लिखेंगे और कंट्रोल एंटर करते जाएंगे वो लिस्ट में शामिल होती जाएंगी वो सब चीज़ें। ठीक है, इसी तरह कॉम्बो बॉक्स के लिए भी सेम तरीक़ेकार है। और अगर आप कोडिंग के ज़रिए करने चाहते हैं तो सिंपली तरीक़ेकार ये है कि फॉर्म लोड के इवेंट पे ये प्रोग्राम आप कर दें। जितने आइटम नाम लिखते जाएं, जो आइटम आपको ऐड करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम काम करने जा रहे हैं क्लिक कमांड 1 पे और कमांड 1 मैंने यूज़ किया है कॉम्बो बॉक्स के लिए। सही है, और कमांड 2 यूज़ किया है लिस्ट बॉक्स के लिए। सही है, अब हम कमांड 1 क्लिक पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक लिख कर आ जाएगा। इस पर आपको क्या कोडिंग करनी है कि अगर कॉम्बो 1 का टेक्स्ट, यानी कॉम्बो 1 में जो लिस्ट में जो भी आइटम होगा, अगर वो ये होगा, सही है, यानी पहला आइटम होगा यहाँ पर। जैसे हमने पहला आइटम जो ऊपर लिखा होगा पहला आइटम होगा, नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह चलता है। तो अगर कॉम्बो 1 के अंदर जो आइटम है, लिस्ट का आइटम है, वो क्या है, अगर ये हो देन क्या करेगा, टेक्स्ट 1 इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है जो नीचे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, उसके अंदर लिख देगा C1। ठीक है, यानी कॉम्बो बॉक्स का पहला आइटम। अगर ऐसा ना हो, दूसरा क्या करेगा, अगर ये लिखा हुआ होगा कॉम्बो, यानी कॉम्बो अब खोलेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसमें ये लिख देंगे तो क्या करेगा, C2 कर देगा। इसको चेक करके देखते हैं, प्ले करें। कॉम्बो बॉक्स खोला, देखें 2 आइटम ऐड हो गए। 2 आइटम हमने लिखे थे कोडिंग के अंदर। ठीक है, खुद ब खुद ऐड हो गया, पहले ऐड नहीं थे। इस पर आप क्लिक करें, पहला आइटम सेलेक्ट हो गया। जब पहला आइटम सेलेक्ट होगा हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा,
इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करें, देखते हैं करता है कि नहीं करता। क्लिक करें, मैंने क्लिक किया तो टेक्स्ट 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया और C1 लिख दिया। इस तरह मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो C2 लिख देगा। ठीक है, ये हो गया कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल। कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक जब हम क्लिक करते हैं इस बटन को तो एक लिस्ट गिरती है। जैसे आप कभी इंटरनेट पर फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर मुल्कों के नाम होते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे मुल्कों के नाम आते हैं। ठीक है, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं हमारे इसी तरह के बॉक्स के अंदर, राइटिंग का साइज़ होता है, फॉन्ट साइज़ इसी तरह के बॉक्स के अंदर। लिस्ट बॉक्स ये सिंपल तरीक़ेकार होता है, सिंपल एक डिब्बा सा होता है, इसके अंदर जो भी आइटम होता है वही नज़र आएंगे। अगर ज़्यादा आइटम्स होंगे, बॉक्स छोटा होगा तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारे ये काम करना शुरू हो गया कॉम्बो बॉक्स। अब हम लिस्ट बॉक्स को काम करने के तरीक़ेकार को देखेंगे। तो बंद करें, कमांड 2 को डबल क्लिक करेंगे तो ये लिख कर आ जाएगा आपका कमांड 2 / क्लिक। तो इस पर क्या कोडिंग करेंगे आप, इफ़ लिस्ट 1 यानी लिस्ट 1 जो सिलेक्टेड आइटम 0, असल में जो पहला आइटम होता है उसको 0 रीड करता है हमारी अभी भी। ठीक है, अगर 0 आइटम सेलेक्ट होगा देन क्या करेगा, टेक्स्ट 1 में लिख देगा L1 यानी लिस्ट बॉक्स का पहला आइटम। और अगर सिलेक्टेड 1 होगा यानी दूसरा आइटम सेलेक्ट होगा तो क्या लिख देगा L2। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 आइटम ऐड कराए हुए हैं लिस्ट बॉक्स में, ये नज़र भी आएंगे जब हम प्ले करेंगे अपने प्रोग्राम को। देखें दोनों आइटम नज़र आ रहे हैं, पहले नज़र नहीं आ रहे थे। जब फॉर्म लोड हुआ तो आइटम भी ऐड हो गए। पहला सेलेक्ट करूँगा और क्लिक करूँगा तो हमने पढ़ा था अपनी कोडिंग में कि जब पहला आइटम इफ लिस्ट 1 डॉट सेलेक्ट 0 होगा यानी पहला आइटम सेलेक्ट होगा तो टेक्स्ट 1 में क्लिक करा जाएगा L1। देखें L1 लिख कर आ गया। दूसरा सेलेक्ट होगा और हम क्लिक करेंगे तो L2 लिख कर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल यूज़ है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का। फ़र्क क्या आप दोनों के अंदर? फ़र्क ये है, जब हम इसको बंद कर देते हैं प्रोग्राम को, जब हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिस्ट बॉक्स को ना, तो आप देखें लिस्ट बॉक्स के अंदर एक चीज़ होती है, ये लिखा है मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन के 3 तरीक़ेकार दिए हैं। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में एक ही तरीक़ेकार होता है कि एक वक्त में कोई एक हम चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर लिस्ट बॉक्स में हमारे पास चांस होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर लें। जैसे हम फाइल्स आमतौर पर सेलेक्ट करते हैं, वो भी एक तरह से लिस्ट बॉक्स होता है जिसमें हम फाइल सेलेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है। अभी तो हमने सिंगल यूज़ सीखा है, इंशाल्लाह मैं थोड़े अरसे बाद ही एक मूवी डाल दूँगा जिसके अंदर हम इसके मल्टी सेलेक्ट की प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे। एक ही साथ एक से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करने की करके देखेंगे किस तरह काम करते हैं। शुक्रिया मेरी मूवी देखने का। मेरी साइट को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।